غزہ پٹی میں حماس کے عسکری ونگ کی جوابی کارروائیوں کے دوران سرنگ میں داخل ہونے والی اسرائیلی فوجیوں پر حملے میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ الیکسان بریگیڈز نے گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کی 41 فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ اسرائیلی فوج کی سپلائی لائن اور ٹینکوں کو بھی تباہ کر دیا۔ زمینی آپریشن میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 138 ہو گئی ہے، جبکہ خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہ، ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر اور جبالیہ میں بمباری سے مزید 60 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں مواصلاتی اور انٹرنیٹ سروسز ایک بار پھر سے بند کر دی گئیں۔ پاکستان کا اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر غزہ میں جنگ بندی کے لیے زور۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت پر تشویش ہے اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کے حق خود ارادیت کے حصول تک ان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور اس سے جڑی تنظیموں سے سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تنظیمیں پاکستان میں منظم دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ کابل پاکستان کے لیے پیچیدہ اور مستقل چیلنج ہے۔ منیر اکرم نے اقوام متحدہ سے دہشت گردوں کے پاس جدید ہتھیاروں کی موجودگی سے متعلق تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق متحدہ عرب امارات کی قرارداد پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں مسلسل تیسرے روز بھی ووٹنگ نہ ہو سکی۔ سیکیورٹی کونسل میں پیش کی گئی قرارداد پر کونسل کے مستقل رکن امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کا لفظ استعمال کرنے پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ امریکہ 2 مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں غزہ جنگ بندی سے متعلق قرارداد کو ویٹو بھی کر چکا ہے۔ عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کرنے اور جمع کرانے کا آج دوسرا روز سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کاغذات نامزدگی کے وصولی کا عمل کل تک جاری رہے گا۔ گزشتہ روز بھی متعدد سیاسی رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے اور جمع کرائے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم کا مقدمہ درج۔ سی ٹی ڈی پنجاب نے باقی کا مقدمہ کانسٹیبل سجاد حسین کی مدعیت میں درج کیا، جس میں دہشت گردی، کار سرکار میں مداخلت سمیت سنگین دفعات شامل کی گئی۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق نامعلوم ملزمان نے کسی کی اماں پر گرنیڈ سے حملہ کیا، جبکہ گھر کے گیراج میں بم پھٹنے سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پاکستان نے 35 کروڑ ڈالرز قرضے کے لیے مصنوعات اور جی ایس ٹی میں ہم آہنگی اور پراپرٹی پر ویلیویشن ریٹ بڑھانے کے لیے ورلڈ بینک کی شرائط تسلیم کر لی ہیں۔ پراپرٹی پر تخمینی لاگت کا تناسب مارکیٹ قیمت کا 85% رکھنے کے لیے صوبائی ریونیو بورڈ نے ایف پی آر کے مالی قدر کے جدول کو ضلعی جدول کے طور پر ملک کے 21 اضلاع میں اختیار کر لیا ہے۔ حکومت کا 15,000 روپے یا اس سے زائد مالیت کے پرائز بانڈز کو بھی رجسٹرڈ دستاویز میں تبدیل کرنے کے لیے ورلڈ بینک سے اتفاق۔ چیف الیکشن کمشنر نے نگراں وزیر اعلیٰ کے مشیر احمد خان چیمہ کو آج ہی عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے نگراں وزراء کو ہٹانے کے معاملے پر نگراں وزراء فواد حسن فواد کے متعلق کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار سید عزیز الدین کاکا خیل ایڈوکیٹ پیش نہ ہوئے، جس پر الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ سیکیورٹی اداروں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کرتے ہوئے ایک ہفتہ قبل سیکیورٹی فورسز کے کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے کے ماسٹر مائنڈ اور 7 سہولیات کاروں سمیت 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ دستاویز کے مطابق دہشت گرد حملے میں ملوث ماسٹر مائنڈ کا تعلق
डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद से है, जबकि हमले में मुलविस 6 दहशतगर्द अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब में शदीद धुंध की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक बंद कर दिया गया, जबकि मोटरवे M3 को समुंदरी से दरखाना, मोटरवे M4 को शेरशाह से फैसलाबाद, मोटरवे M5 को शेरशाह से जाहिर पीर रोड लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया। निगरान वजीर आजम नवारुल हक काकड़ कहते हैं कि रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है, कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना तो करना पड़ेगा। निगरान वजीर आजम का कहना था कि ये सवाल गलत है कि रियासती इक़दाम क्यों किए गए। कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं मगर सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। सियासत का निज़ाम कानून और आइन के मुताबिक ही चलना चाहिए। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ रियासत आइन के तहत ही इक़दाम करती है। दक्की में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, बारातियों की गाड़ी उलटने से 2 खवातीन 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। 8 जख्मी बच्चों को डीजी खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर खुरम शहजाद पसली में फ्रैक्चर की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। फास्ट बॉलर ने पहले टेस्ट के दौरान 22+ बाईं पसली में तकलीफ की शिकायत की थी। PCB स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आइंदा का प्लान तय किया गया, जिसके बाद फास्ट बॉलर का NCA में रहीब शुरू किया जाएगा। पाकिस्तानी बैटर साउद शकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बदकिस्मती से खुरम शहजाद सीरीज से बाहर हो गए हैं। मीर हमजा और हसन अली के पास अच्छा मौका है। उम्मीद है मेलबर्न में बाबर आजम अच्छी इनिंग्स खेलकर वापस फॉर्म लाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में रासुल खैमा की इमारत ने 16,500 दिरहम की सालाना लागत से वीजा फॉर लाइफ का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकिल रिहायशी वीजा उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो अपने प्यारों के साथ मुंतकिल होना चाहते हैं, जिससे वीजा होल्डर आसानी से अपने खानदान के मेंबरान को मुत्तहिदा अरब अमारात में उनके साथ शामिल होने के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हज को डिजिटलाइज करते हुए मोबाइल ऐप बना ली है। निगरान विफाकी वजीर बराए IT डॉक्टर उमर सैफ और निगरान विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद ने मोबाइल एप्लीकेशन पाक हज का इजरा किया। NITV की तैयार करदा मोबाइल ऐप से आज़मीन हज के लिए तमाम मालूमात फिंगर टिप्स पर होंगी। वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद कहते हैं कि मोबाइल ऐप को उर्दू और इंग्लिश में बनाया है। हज से कबल इस ऐप में मुकामी जुबानें भी शामिल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको दें कि गजा की पट्टी में हमास के जंगजुओं ने हमला करके सुरंग में दाखिल होने वाले 5 इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया है, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। हमास के अस्करी विंग अल-क़्साम ब्रिगेड्स ने गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान इसराइल के 41 फौजी गाड़ियों को निशाना बनाने के साथ साथ इसराइली फौज की सप्लाई लाइन और टैंकों को भी तबाह करने का दावा किया। ताज़ा हमलों के बाद हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 138 हो गई। अल-क़्साम ब्रिगेड्स की जानिब से इसराइली फोर्सेस पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी गई, जिसमें देखा जा सकता है कि हमास के जंगजुओं ने गजा में सेहूनी फोर्सेस पर हमलों के दौरान टैंकों को निशाना बनाया। टैंकों को तबाह होते हुए देखा जा सकता है। दूसरी जानिब यमन के हूसी रहनुमा इसराइल की मदद के लिए पहुंचे।
गजा में जंगबंदी से मुतालिक मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में मुसलसल तीसरे रोज भी वोटिंग न हो सकी। गजा में हर गुजरते दिन के साथ साथ शहादतों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में मेन हेडक्वार्टर्स में गजा की हालत जार से मुतालिक जारी बहस के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने वोटिंग से कबल सफारतकारी के लिए मजीद एक रोज की मोहलत देते हुए तीसरी मरतबा वोटिंग एक रोज के लिए मौखर कर दी। सिक्योरिटी कौंसिल में पेश की गई करारदाद पर कौंसिल के मुस्तकिल रुकन अमेरिका की जानिब से जंगबंदी केस फायर का लफ्ज इस्तेमाल करने पर एतराजात उठाए गए, जबकि इससे कबल अमरीका 2 मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल में गजा जंगबंदी से मुतालिक करारदाद को वीटो भी कर चुका है। अमरीका ने कहा कि गजा में मुकम्मल जंगबंदी का फायदा हमास को होगा। करारदाद में सीज फायर का लफ्ज हज़फ किया जाएगा। सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसवदा पेश करने वाले मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने पीर को होने वाली वोटिंग को एक दिन के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इससे जुड़ी तंजीमों से संगीन खतरात लाहक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलविस हैं। काबिल पाकिस्तान के लिए पेचीदा और मुस्तकिल चैलेंज है। मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा से दहशतगर्दों के पास जदीद हथियारों की मौजूदगी से मुतालिक तहकीकात का भी मुतालबा किया है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने का आज दूसरा रोज है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली का अमल कल तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज भी मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी वसूल किए और जमा करवाए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। ईसीबी का कहना है कि 3 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि 10 जनवरी को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसले का आखिरी दिन होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें भी जारी की जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंतूब मुनीर अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इससे जुड़ी तंजीमों से संगीन खतरात लाहिक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशत गर्दी में मुलविस हैं। काबुल पाकिस्तान के लिए पेचीदा और मुस्तकिल चैलेंज है। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने का आज दूसरा रोज है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली का अमल कल तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज भी मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी वसूल किए और जमा करवाए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एसीसीपी का कहना है कि 3 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों के लिए मुख्तस किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। सवाबी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के तालिब इल्मों से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि यह सवाल गलत है कि रियासती इक़दाम क्यों किए गए हैं। कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं मगर सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि रियासत का निज़ाम कानून और आइन के मुताबिक चलता है।
قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف ریاست آئین کے تحت اقدامات کرتی ہے۔ اس سے پہلے نگراں وزیر اعظم نے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں گرلز ہاسٹل کی نئی عمارت کا افتتاح بھی کیا تھا۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سی ٹی ڈی پنجاب نے واقعے کا مقدمہ کانسٹیبل سجاد حسین کی مدعیت میں درج کیا، جس میں دہشت گردی، کار سرکار میں مداخلت سمیت سنگین دفعات شامل کی گئی۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق نامعلوم ملزمان نے کسی کی اماں پر گرینیڈ سے حملہ کیا، جبکہ گھر کے گیراج میں بم پھٹنے سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ خبر آپ کو دیں گے کہ سیکیورٹی اداروں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کرتے ہوئے ایک ہفتے میں قبل سیکیورٹی فورسز کے کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے کے ماسٹر مائنڈ اور 7 سہولت کاروں سمیت 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بڑی خبر ہے، سیکیورٹی اداروں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کرتے ہوئے ایک ہفتہ قبل سیکیورٹی فورسز کے کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے کے ماسٹر مائنڈ اور 7 سہولت کاروں سمیت 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ دستاویزات کے مطابق دہشت گرد حملے میں ملوث ماسٹر مائنڈ کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن سے بتایا جاتا ہے، جبکہ حملے میں ملوث 6 دہشت گرد گرفتار ہو چکے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کی، تو آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں شدید دھند کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے M2 کو لاہور سے ہرن مینار تک بند کر دیا گیا، جبکہ موٹر وے M3 کو سمندری سے درخانہ، موٹر وے M4 کو شیر شاہ سے فیصل آباد، موٹر وے M5 کو شیر شاہ سے ظاہر پیر اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بند کر دیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے یہ بندوبست کیا جا رہا ہے۔ قومی شاہراہوں پر دھند کا دورانیہ موسم سرد ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھ چکا ہے۔ شہری زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات پر سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ تو وہیں دوسرے جانب ناظرین، آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائے سندھ کے بیشتر علاقوں میں رات کو دھند کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور مطلع جزوی برآلود رہنے کا امکان۔ آج کوئٹہ، یوب، چمن اور پشین میں ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ یوب اور چمن میں ہلکی برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مری، گلیات اور خطہ پوٹوہار میں بھی موسم سرد رہنے کا امکان۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ برقرار، پاکستانی روپیہ مزید تگڑا ہو گیا۔ اسٹاک ایکسچینج پہ بھی زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی۔ جمعرات کو کاروبار کے آغاز پر ہی انٹر بینک میں ڈالر مزید 40 پیسے سستا ہو کر 242 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی دیکھی گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 320 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انڈیکس 62,768 کی سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 62,448 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے حج کو ڈیجیٹلائز کرتے ہوئے موبائل ایپ بنا لی۔ نگراں وفاقی وزیر برائے IT ڈاکٹر عمر سیف اور نگراں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد نے موبائل اپلیکیشن پاک حج کا اجرا کیا۔
NITB की तैयार करदा मोबाइल ऐप से आज़मीन हज के लिए तमाम मालूमात फिंगर टिप्स पर होगी। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का कहना था कि डॉक्टर उमर सैफ मदद न करते तो पाक हज ऐप पाया तकमील को न पहुंचती। खबर आपको देंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात में रासल खैमा की इमारत ने 16,500 दिरहम की सालाना लागत से वीज़ा फॉर लाइफ का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अरब अमारात में रासल खैमा की इमारत ने 16,500 दिरहम की सालाना लागत से वीज़ा फॉर लाइफ का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो अपने प्यारों के साथ मुंतकिल होना चाहते हैं, जिससे वीज़ा होल्डर आसानी से अपने ख़ानदान के मेंबरान को मुत्तहिदा अरब अमारात में उनके साथ शामिल होने के लिए मुंतकिली के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर खुरम शहजाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर खुरम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बाद टेस्ट सीरीज से बाहर हुए। खुरम शहजाद ने पर्थ टेस्ट के दौरान तकलीफ की शिकायत की थी। खुरम शहजाद को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जिस्म में दर्द महसूस हुई थी। उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद ने पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में मजमूई तौर पर 38 ओवर्स कराए थे। भारतीय वज़ीर आज़म ने सिख रहनुमाओं के कत्ल के इल्जाम पर घुटने टेक दिए हैं। इस हवाले से उनका एतराफी बयान भी मंजर-ए-आम पर आ चुका। अमेरिका में सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश में भारत के मुलविस होने के हवाले से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात पेचीदा हो चुके हैं। मोदी सरकार अमेरिका से बिगड़ते ताल्लुकात को देखते हुए अब ये कहने पर मजबूर हो गया है कि हमारे किसी शहरी ने अच्छा या बुरा किया है तो हम उसका जायजा लेने के लिए तैयार हैं। इस मुकदमे से वाकिफ लोगों के मुताबिक कत्ल की कोशिश का हदफ एक अमरीकी और कैनेडियन शहरी था जो अलहदगी पसंद ग्रुप में शामिल हुआ। भारत ने 2020 में पन्नू को दहशतगर्द करार दिया था, जिससे वो इनकार करते हैं। भारत ने 12 मगरबी ममालिक में यह भी इल्जाम लगाया कि वो सिख अलहदगी पसंदों के बारे में अपने सिक्योरिटी खदशात को संजीदगी से नहीं ले रहे। मोदी सरकार और अमेरिका के दरमियान सिखों की सिक्योरिटी के हवाले से तनाव की वजह से सदर जो बाइडेन भारत का दौरा भी मनसूख कर चुके हैं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की मट्टी दिफाए वतन में जान कुर्बान करने वाले शोहदा के खून से रंगी है। अमन दुश्मनों ने जब भी सरजमीन पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो पाक फौज के बहादुर सपूतों ने जान की परवाह किए बगैर वतन की पुकार पर लबैक कहा। लॉन्स नाइक रफीक खान मुल्क की दफा की खातिर आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक लड़े। लॉन्स नाइक रफीक खान का ताल्लुक 4 सदा से है। लॉन्स नाइक रफीक खान 6 नवंबर 2023 को जिला खैबर के इलाके 13 में दहशतगर्दों के खिलाफ जवानमर्दी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। लॉन्स नाइक रफीक खान शहीद ने सौगराम में वालिदैन, बेवा और 2 बेटे छोड़े। लॉन्स नाइक रफीक खान शहीद के वर्सा ने अपने एहसासात का इजहार किया। नवंबर को मेरे भाई शहीद हो गए तिरा में। मेरा भाई बहुत बहादुर इंसान था, बहुत ज़बरदस्त बंदा था, मेरा बहुत प्यारा भाई था, बहुत प्यारा। दर्द तो बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या करे, वो हमारे मुल्क है, हमारा मट्टी है, हमारा ज़मीन है, तो उसके लिए मैं अपनी जान के लिए भी वो कोई परवाह नहीं करता हूँ। मैं अपनी शहादत के लिए तैयार हूँ। मेरा भाई अभी छुट्टी पे आया था, कुछ दिन पहले वो आया था इधर, मुझे कॉल किए मेरे माँ ने बताया था कि वो छुट्टी पे है। इस छुट्टी पे मेरे साथ इतना घूमा ना, इतना घूमे, मेरे सारे जो जितने भी गम था सारे उसने ख़त्म कर दिए। मैंने बोला बस अभी बहुत घूमे मेरे साथ। बस मंगा چې دی نو لومبه مازیګر کې مونږ ته اطلاع رااله چې دغه شان ستاسو زوی لکه نرتوب او په بهادرۍ باندې دا شهید شوی دی، د دې د شهیدګي د خدای پاک نصیب کی او دعا زامن زما ان شاء الله نورم پکې شته د خیره. دا مقدس ده چې دا د انسان د پاره برازي د دو پکې نصیبه وا او تاسو پکې خیر دی بهادرۍ ته تاسو ځان رسوي. شہید رفیق خان بھی ہمارے ایسا وہ دوست تھا جو بچپن سے یہاں ساتھ یہ علاقے میں کھیلتے تھے، ساتھ میں پڑھتے تھے. اور رفیق بھائی جو تھا یہ تو بچپن سے اس کا شوق تھا
کہ ہم نا وہ ساتھ میں یہ پوسٹ جوائن کریں، اور اس نے کر بھی لیا، اور پھر یہ مطلب وہ وہاں پہ تیرا کے علاقے میں اس نے جب شہادت نوش کیا. اور ہمارے اس تمام علاقے میں مقبرہ جہاں ہم کھڑے ہیں جس قبرستان میں، یہاں پہ تقریباً 16 کے قریب شہداء جو پولیس کی بھی ہے اور آرمی کی بھی ہے یہاں پہ دفن ہے. تو انشاءاللہ ہم پہلے بھی کر رہے تھے اپنے وطن کے لیے، اب بھی کر رہے ہیں اور بعد میں بھی کریں گے. سمندر پار پاکستانیوں کے وفد کی مزار قائد پر حاضری. پاکستان کے دورے پر آئے سمندر پار پاکستانیوں کے وفد نے مزار قائد پر حاضری دی اور وفد نے بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا. وفد کے قائد میاں طارق نے قوم کی افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور غیر متزلزل عزم کی تعریف کی. میاں طارق نے کراچی کی عوام کی جانب سے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا. میاں طارق کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. ان سازشوں کا مقابلہ ہماری پاک فوج جمع مردی سے کر رہی ہے. وفد کے شرکا کا کہنا تھا کہ ہم اتحاد کے ساتھ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. ہمیں اپنے ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دینا ہے اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا ہے. شہداء کے لیے غم اٹھانا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری پاک فوج ہر محاذ پر فتح کے جھنڈے گاڑ رہی ہے. اسکواش کھلاڑی حذیفہ ابراہیم کا عالمی سطح پر بڑا اعزاز. امریکی شہر فلاڈیلفیا میں یو ایس اوپن انڈر 19 اسکواش چیمپئن شپ کے مقابلے منعقد کیے گئے ہیں، جبکہ یو ایس اوپن انڈر 19 چیمپئن شپ میں 30 ممالک کے 128 کھلاڑیوں نے شرکت کی. اسکواش چیمپئن شپ مقابلوں میں پاکستان آرمی کے حذیفہ ابراہیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا. حذیفہ ابراہیم مسلسل 6 میچ جیت کر فائنل میں پہنچے، جہاں ان کا مقابلہ امریکہ کے رشی سریواستو سے ہوا. حذیفہ ابراہیم نے فائنل میں شاندار کھیل پیش کیا، تاہم سنسنی خیز مقابلے کے بعد امریکی کھلاڑی رشی سریواستو نے کامیابی اپنے نام کر لی. حذیفہ ابراہیم نے انڈر 19 کیٹیگری میں یو ایس جونیئر اسکواش چیمپئن 2023 میں چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا. غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی. گزشتہ روز 1769 افغان شہریوں نے وطن واپسی میں ہجرت کی ہے، جن میں 478 مرد، 286 خواتین اور 1005 بچے اپنے ملک واپس لوٹ چکے ہیں. اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,41,893 تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے. افغانستان روانگی کے لیے 55 گاڑیوں میں 82 خاندانوں نے اپنے وطن واپسی عمل میں لائی ہے. پاکستان مسلم لیگ کے چیف آرگنائزر چودھری محمد سرور نے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی اور دیگر کے ہمراہ کرسمس کی مناسبت سے کیک کاٹا. اس موقع پر مسلم لیگ لاہور کے صدر میاں وحید، جنرل سیکرٹری محمد ندیم پہلوان، حمزہ کرامت سمیت دیگر بھی موجود تھے. چودھری محمد سرور نے کہا کہ مسیح بہن بھائیوں کو کرسمس کے تہوار پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کا ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ہے، خاص طور پر مسیحی برادری کا تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کردار ناقابل فراموش ہے. اس موقع پر ندیم پہلوان نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج آفیسرز کو پی پی 17 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں. ہمارا عزم اور موقف پاکستان کی خدمت، ترقی، تعمیر اور استحکام ہے. پاکستان سے تحریکی فساد فی الارض کا خاتمہ کرنا ہے. لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کے لیے موجود ہے. ایک جماعت لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ جس ڈونلڈ ٹرمپ سے متاثر تھے وہ نااہل ہو گیا. اب دیکھنا ہوگا پاکستان کی عدالت پاکستانی ڈونلڈ کو کب سزا دے گی. یونیورسٹی آف ہری پور میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء طالبات نے حضرت سیدہ کی سیرت پر روشنی ڈالی. تقریب میں علی رضا گرمانی، مفتی اطہر محمود اور دیگر بھی موجود تھے. اس وقت ہمارے نمائندے راشد محمود تقریب میں موجود ہیں. جی راشد، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، اس وقت میں موجود ہوں یونیورسٹی آف ہری پور میں. یہاں پہ سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت پہ بڑی اچھی سپیچ کی گئی ہے اور ایک بہترین پروگرام ارینج کیا گیا ہے.
इस वक्त मेरे साथ मुफ्ती इलामा मुफ्ती जानजेब अली जाफरी साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया बोलने का। ये हरिपुर यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम हुआ है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया को कि उन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम किया, और ऐसे ही प्रोग्राम हमारे असलाफ़ की जितनी भी शख्सियात हैं उन पे होने चाहिए। जिस तरह से बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से ये प्रोग्राम हुआ, मकाला नवीसी हुई, यहाँ पे बच्चियों ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से मकाला पेश किया, बच्चों ने भी पेश किया। मैं उनकी जुर्रत को सलाम करता हूँ कि वो आए और उन्होंने इतने सारे महफिल में बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से सीरत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से स्पीच किया। ये मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हरिपुर के यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने इस जैसे प्रोग्राम को मुरतब किया, और आइंदा भी मुरतब कर लें ताकि इस तरह से हम अपने असलाफ़ के शख्सियात से और इस्लाम के अजीम शख्सियात से आशना होते रहें और हमारे बच्चों को आशनाई मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप हरिपुर को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छा सीरत पे ये प्रोग्राम मुरतब किया है। यहाँ पे नियर जाफरी साहब भी मौजूद थे, मुफ्ती अज़हर महमूद साहब भी मौजूद थे, और बाकी भी यहाँ पे आए और फर्स्ट सेकंड जो इनको इनामात भी। डेप्यूटी कमिश्नर पेशावर आफाक वजीर की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट पोलियो ऑफिसर डॉक्टर नवीद खुर्शीद, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट पोलियो ऑफिसर डॉक्टर सैफ समेत मुख्तलिफ महकमा सेहत हुकाम ने शिरकत की। अफसरान ने शिरकत करते हुए कहा कि इजलास में पिछले माह की इंसदाद पोलियो मुहिम का तफसीली भी जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर को बताया गया है कि पिछले माह में पेशावर की कुछ यूनियन काउंसिलों में पोलियो की कवरेज कम रही थी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वजीर ने कम कवरेज वाले यूनियन काउंसिलों के पोलियो स्टाफ पर जोर दिया है कि वो अपना काम दयानतदारी से करते हुए पोलियो कवरेज के हवाले से अपना हदफ पूरा करें। डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वजीर ने वालिदैन से भी अपील की है कि पोलियो जैसी मूजी मर्ज के खात्मे के लिए अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। चूनिया में खून सफेद हो गया, भांजों ने सगे मामू को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक थाना कंगनपुर में भांजों और मामू के दरमियान मामूली लड़ाई झगड़ा हुआ। मामू आजम भैंसों को चारा डालने गया तो घात लगाए भांजों ने कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। मामू को बेरहमी से कत्ल करने के बाद मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस थाना कंगनपुर मौका पर पहुंच गई, जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करेंगे मंचनाबाद से, जहां खिदमत सेंटर में लर्निंग लाइसेंस की सहूलत फराहम कर दी गई है, जिस पर अवाम ने सुख का सांस लिया। दूसरी तरफ अवाम का कहना है कि हमें टेस्ट देने के लिए तकरीबन 40 किलोमीटर फासला तय करके जाना पड़ता है। आरपीओ और डीपीओ बहावलनगर से अपील करते हैं कि टेस्ट भी तहसील मंचनाबाद में ही ले लिया जाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद खिदमत सेंटर में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज जो खिदमत सेंटर है जावेद साहब वो भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आवाम को क्या पैगाम देंगे लर्निंग के हवाले से, जो लर्निंग बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, और जो खिदमत सेंटर में किन किन चीज़ों का जो चीज़ें आवाम को मुहैया की जा रही हैं उनके हवाले से क्या अवेयरनेस देंगे। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आईजी साहब का और डीपीओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने खिदमत मरकज़ मिंचनाबाद के आवाम के लिए बनवाया। यहाँ पर एक छत के नीचे 14 चीज़ें लोगों के लिए अवेल हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के मतलब करैक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन और किरायानामा, इस तरह की तमाम सहूलियात लोगों के लिए मुयसर हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस के मतलब बताता चलूँ कि पेपरलेस वर्क शुरू है इधर, सिर्फ ID कार्ड लेकर आएँ और अपना लाइसेंस बनवाएँ। जिस तरह के इंचार्ज जावेद साहब की आप बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि IG पंजाब और DPO बहावलनगर के वो मशहूर हैं, पेपर लेस वर्क शुरू है, सिर्फ ID कार्ड लेके आएँ। तो हमारी मिंचनाबाद की आवाम से बात हुई तो उनका ये कहना है कि IG पंजाब और DPO बहावलनगर से हमारी पुरजोर अपील है कि तकरीबन बहावलनगर 40 किलोमीटर यहाँ से दूर है। लर्निंग की सहूलत तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो हम ट्राई देने के लिए जाते हैं तो किराया भी देना पड़ता है। अगर बाइक पर जाते हैं तो ठंड बहुत ज़्यादा है। तो खुदारा IG पंजाब और DPO बहावलनगर जो ये ट्राई दी जाती है, ये भी मंचनाबाद में हमें ट्राई की सहूलत दी जाए। दूसरा
कोर्ट अद्दू में भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। PP 278 से तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी रऊफुर रहमान ने भी कागजात जमा करवा दिए। हमारे नुमाइंदा मीर हमजा इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे लेंगे। जी हमजा बताइएगा। जी बिल्कुल, साल 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान की जानिब से जो है कोर्ट अद्दू में भी कागजात नामजदगी जमा कराने का जो वो सिलसिला जारी है। बताता चलूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उम्मीदवार PP 278 NA 179 चौधरी रऊफुर रहमान भी जो है वो इस वक्त कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जो वो जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप कागजात भी जमा करवाने जा रहे हैं, किस तरह की जो है वो तैयारियाँ इलेक्शन की, क्या कहेंगे इस वाले? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर लेवल की तैयारी है और का बयानिया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर घर में जो है वो पहुंच चुका है। और हमें, मैं समझता हूँ कि कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कैंपेन जो है हमारी 3.5 साल की कारकर्दगी है कि उस वक्त डाला का रेट आप देखें, बिजली का रेट देखें, पेट्रोल का रेट देखें, हेल्थ कार्ड देखें, एहसास प्रोग्राम देखें, तो जितने ऐसा अंदाज में हमारी हुकूमत ने मामलात को चलाए, आज उसका अशरे अशीर भी नहीं है। और हमारे जो है मुखालफिन वो बुकलाए हुए हैं, वो जो है हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं गैर ज़रूरी। और मैं कहता हूँ कि इन हथकंडों से जो है उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत जो है वो हक सच के साथ है और हम सब जो है PTI के प्लेटफार्म के नीचे मुत्तहिद हैं। और हमें ये बावर कराया जा रहा है कि शायद हमारे वोट की कोई अहमियत नहीं है। भाई हमारे वोट की ही अहमियत है असल में। तो मैं तमाम पाकिस्तान के जो है वो शहरियों से कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मौका दे रहा है अपनी किस्मत को संवारने का। 8 फरवरी को भरपूर अंदाज में खौफ के बुत तोड़ के निकलें और जो है वो PTI को कामयाब कराएं। आज बिल्कुल बताता चलूँ, ये कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जो है वो 22 दिसंबर तक जो है वो। अब महंगाई के मारे अवाम को पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका भी हल ढूंढ लिया गया। रावलपिंडी के इंजीनियर ने अपनी टीम के हमरा पेट्रोल इंजन की बैटरी को तब्दील कर दिया। मजीद बता रहे हैं रावलपिंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे MA राज। जी राज, कौन सा हल निकाला है इंजीनियर्स ने, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब आपको पेट्रोल की कीमतों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। रावलपिंडी के इंजीनियर ने अपनी टीम के हमरा गाड़ी से इंजन को इलेक्ट्रिकल में तब्दील कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा, पेट्रोल की क्या कीमत चल रही है आजकल? देखें, मेरा ख्याल है पेट्रोल की कीमत कम होके अब अराउंड मेरे ख्याल से 268 के करीब आ गई। हम तो उसमें क्योंकि इसको सोलर से फ़िलहाल चार्ज कर रहे हैं और या वॉल सॉकेट से चार्ज करते हैं, तो यूजुअली हमें तो इतनी ज़्यादा इसकी परवाह नहीं होती। ये हमारी गाड़ी तकरीबन 30 यूनिट्स के अंदर 200 किलोमीटर चलती है। यानी कि अब आपको पेट्रोल की कीमत के उतार चढ़ाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि जो इसकी रूटीन मेंटेनेंस है, जिसमें ऑयल चेंज है, कुछ स्पार्क प्लग्स हैं या डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं कि गाड़ी गर्म हो रही है, हम इन तमाम फिक्रों से आज़ाद हो गए हैं क्योंकि ये गाड़ी अब कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक पे चल रही है। इसमें अंदर हमने 10 किलोवाट्स की ब्रशलेस DC मोटर लगा दी है और एक लिथियम आयन का बैटरी पैक है जिसको हम वॉल सॉकेट से चार्ज करते हैं। आप सनफ़े नाजुक हैं और आप बिजली के साथ खेलना शुरू कर दिया है, गाड़ी को भी आपने तब्दील कर दिया। कितना टाइम लगता है गाड़ी को तब्दील करने में? सर, क्योंकि हमने इसको स्क्रैच से स्टार्ट किया था तो हमें इसको ऑलमोस्ट टेस्टिंग फेज को मिलाकर 4 to 5 मंथ्स लगे थे। बट अभी क्योंकि हम इसके प्रॉपर इसके ऊपर हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया तो लाइक हम 1 मंथ में इससे भी कम टाइम में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंजन ट्रेडिशनल कार्स को इलेक्ट्रिक पर। एक दफ़ा जब आप गाड़ी को चार्ज कर लेते हैं तो कितने किलोमीटर तक ये चल सकता है? सर, इसमें 2 वेरिएंट्स हैं। जैसे AC इंडक्शन मोटर के साथ अगर आप उसको कन्वर्ट करें तो वो आपको एक चार्ज में 160 to 170 किलोमीटर रेंज दे देती है। लेकिन ये जैसे BLDC मोटर के साथ कन्वर्जन हुई हुई है इसकी, तो ये आप हमें डिपेंडिंग ऑन द स्पीड 180 से 200 किलोमीटर की रेंज देती है। क्या फ़र्क है एक पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी में और जब आपने इसको कन्वर्ट कर दिया बैटरी पर चलती है, तो इसमें क्या फ़र्क होता है? सर देखें, सबसे पहले मेन चीज़ के जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये जो हमारी गाड़ी है इसके अंदर कोई इमिशंस नहीं है, कोई एग्जॉस्ट गैसेस नहीं है, फिर नॉइस पोल्यूशन है वो भी नहीं है इसकी वजह से। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और जैसे कि आपको पता है कि EV जो है वो फ्यूचर
व्हीकल्स हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जब आप इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसमें और जो पेट्रोल गाड़ी होती है उसमें प्राइस का कितना फ़र्क पड़ जाता है? आपको पता है आजकल प्राइस का रेट तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 230 240 इस तरह के राउंड अबाउट पे चलता रहता है। हमारा बैटरी पैक 13 किलोवाट आवर का है, तो हमें 13 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको चार्ज करने के लिए, और उसके लिहाज से हमारा 700 to 800 रुपीज़ में हम 200 किलोमीटर की चला सकते इस कार को। जी, मेरे साथ मौजूद थे इंजीनियर जिन्होंने पेट्रोल को इलेक्ट्रिकल में रिप्लेस कर दिया है। अब आपकी गाड़ी जो है वो पेट्रोल की बजाय बिजली से चलेगी और ये एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अक़लीती अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू हो गए। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, नायब सदर हमजा शहबाज, पार्टी इलेक्शन सेल के चेयरमैन सेनेटर इसहाक डार, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी इजलास में शरीक हैं। लाहौर में जाली दूध की फरोख्त का धंधा न रुक सका। पंजाब फूड अथॉरिटी की कोशिशें नाकाम बनाने और शहरियों की जिंदगियों से खेलने के लिए माफिया ने चोर रास्तों का इंतखाब कर लिया है। शहर के दाखिली रास्तों पर पंजाब फूड अथॉरिटी की इंस्पेक्शन से बचने के लिए चोर रास्तों से जाली दूध की गाड़ियां दाखिल करके दुकानों पर दूध की सप्लाई होने लगी है। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जाली दूध की फरोख्त रोकने के लिए लाहौर के तमाम दाखिली रास्तों पर दूध की गाड़ियों की मुस्तकिल इंस्पेक्शन तो राइज है, लेकिन जाली दूध माफिया को चोर रास्तों से शहर में जाली दूध की सप्लाई की खुली छूट है और चोर रास्तों से दाखिल होने वाली जाली दूध की गाड़ियां पूरे शहर में बड़ी बड़ी दुकानों पर जाली दूध की सरेआम फरोख्त में मुलव्वस हैं। जिन इलाकों में हम जाली दूध की सप्लाई का स्टॉक लगाने में कामयाब हुए हैं उनमें ठोकर न्याज पेक, लियाकत चौक, जौहर टाउन और वाल्टन शामिल हैं। और हैरानकुन तौर पर जाली दूध की फरोख्त में मुलव्वस बेशतर दुकानदार पंजाब फूड अथॉरिटी के लाइसेंस होल्डर्स हैं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी को शहरियों की जिंदगियों से खेलने वाले और जाली दूध माफिया की चोर रास्तों से शहर में जाली दूध की सप्लाई को रोकने के लिए बेहतर हिकमत अमली तरतीब देकर मुअस्सर कार्रवाइयों की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया इरफान हैदर, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि शाहदरा के इलाके कोट शहाब में समाजी शख्सियत सुहेल इकबाल के डेरे पर मसीही बरादरी के त्यौहार क्रिसमस की खसूसी तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें LWMC वर्कर्स, मसीही बरादरी समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में आशिक हुसैन एडवोकेट हाई कोर्ट ने भी खसूसी तौर पर शमूलियत इख्तियार की। इस वक्त हमारे रिपोर्टर मोहम्मद यूनुस सुहेल इकबाल और मसीही बरादरी के साथ तकरीब में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी यूनुस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद शाहदरा फरोजा कोट शहाबुद्दीन में, जहां चिश्ती हाउस पे मसीह बरादरी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आइए इसी हिसाब से बात करें, इस तकरीब के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मसीह बरादरी का जो हम करते हैं इनकी खुशी के लिए क्रिसमस के मौके पे ये तकरीबन हर साल ऐसा ये प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं। तो आज भी इनकी बड़ी मेहरबानी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुझे इज्जत देते हैं, मेरे साथ आते हैं, मिलजुल के एक दूसरे के साथ इन क्रिसमस की खुशियों का इजहार करते हैं। तो आज इनके लिए हमने क्रिसमस केक भी काटा है, खाना भी इनको मिला है, इनके जो मेरे से तावन होता है वो भी हम करते हैं। तो मैं एक मैसेज दूंगा अपनी तमाम कम्युनिटी को, खासतौर से शहरे वालों को, अगर हम मिलजुल के एक दूसरे का एहसास करें इंसानियत का, वतन भी खुशहाल और मेरे दिल वाले मेरे लोग हैं हौसले ईमान वाले, वो भी खुशी और खुशहाली में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसा कि आप सुना कि वतन भी खुशहाल और मसीह बरादरी के जो वर्कर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्हें इस पुरवकार तकरीब में आकर उनको कैसा लगा। जी भैया, क्या कहेंगे। मैं इन अपने चिश्ती हाउस दे साहब का बड़ा शुक्र अदा करना। इससे पहले क्रिसमस तो मैं नौकरी तो उतरिया सा ते कोई घर का घरेलू मसला सी मेरा, ते मैं इन्हां दे आके इन्हां नूं चिश्ती साहब होरां मैं कहा, ते इन्हां ने कहा इंशाल्लाह आंदा क्रिसमस जिहड़ा ना मेरे कोल फिर दोबारा केक इत्थे मेरे कोल खाएगा। मैं इन्हां दा चिश्ती साहब का बड़ा शुक्र अदा करना ते इन्हां ने दोबारा मैनूं जिंदगी दीयां रोटियां देतियां।
ये हमारे पास उनके जो इंचार्ज हैं वो भी साथ में मौजूद, उनसे बात करते हैं कि उन्हें इस तकरीब में आकर कैसा लगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर ज़ोनल इंचार्ज इधर पहली दफ़ा चिश्ती हाउस में चौधरी सेल के बाद चिश्ती साहब ने हमें दावत दी, और पहले भी ये क्रिसमस के हवाले से इवेंट करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो इन्होंने बढ़ चढ़ के किया ना, बहुत ही वर्कर हमारे खुश हैं, और इन्होंने इनामात भी दिए हैं, उनको वर्करों को खाना शाना भी खिलाया, और वर्कर बहुत हमारे हैप्पी हैं। और ये चौधरी सुहेल के बाद चिश्ती साहब ने हमेशा की तरह ये मसीह लोगों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इनका ख्याल रखते हैं, ये बहुत दर्द दिल वाले बंदे हैं, और ये बड़ा गरीब परवर हैं। जी, इनका यही कहना था कि चिश्ती साहब जो मसीह बरादरी से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पर इनके हवाले से केक भी काटा गया, इनके इनामात भी तकसीम किए गए। लाहौर प्रेस क्लब के 2024 के लिए सालाना इंतखाबात में जर्नलिस्ट पैनल की भरपूर मुहिम जारी है। 11 बार लाहौर प्रेस क्लब का सदर मुंतखब होने वाले अरशद अंसारी इस दफा भी जर्नलिस्ट पैनल की तरफ से ही सदारती उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि अगर वो मुंतखब हुए तो माजी की तरह 2024 में भी अपनी टीम के हमरा सहाफियों की भरपूर खिदमत करेंगे। सहाफियों के लिए प्रेस क्लब की मेंबरशिप खोलेंगे और जर्नलिस्ट कॉलोनी के मसाइल को भी हल किया जाएगा। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली फारूक उनके हमरा लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा अरशद अंसारी का क्या कहना है? जी, मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ लाहौर प्रेस क्लब में, जहाँ जर्नलिस्ट पैनल के जो बानी सदर भी हैं अरशद अंसारी साहब, उनसे बात करते हैं, जो मुसलसल 11 दफ़ा रहे हैं और रिकॉर्ड है, सदर रहे हैं, और इनके दौर में लोगों को प्लॉट भी मिले। अली ठीक है, खरीद है। अरशद साहब बताएंगे आप क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले तो बात यह कि मैं 2 साल बाद, मैं 2 साल एक्स्ट्रा, आपको पता है आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको इसकी यहाँ की सियासत का भी पता है। मामला ये है कि 2 साल में आप आते रहे, यहाँ पे लोगों की चीखें निकल गई, ना इस क्लब में ना पानी पीने के लिए रह गया, ना खाने के लिए खाना रह गया, ना साफ पानी है, ना बैठने की जगह। 2 साल ये सीनियर साहब शेख रशीद साहब खड़े, गजनफर अवान साहब, पीछे भट्ट साहब आ गए। ये वो लोग हैं कि जो दिल्ली के विजिटर हैं। शायद मैं दिल्ली नहीं आता, लेकिन ये लोग दिल्ली आते हैं। आप इनसे भी ज़रा पूछें कि ये 2 साल ये आए हैं तो उनको क्या मिला। पहले तो बात है, क्लब जो है ना, क्लब बड़ा नीचे गया, और मुझे अफसोस ये है कि मैंने ये सामने इमारत जो आप देख रहे हैं बनाई, अंदर वाली सारी नई इमारत बनाई, वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया, वो भी ख़राब पड़ा है, वॉशरूम है नहीं। ये तो क्लब की हालत है। नीचे जाएँ, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, रिसेप्शन खाली पड़ी है। 2 साल एक ही एसी चलता रहा, वो सदर रूम का, सेक्रेटरी रूम का, यहाँ एसी में चला, तंदूर में बैठ के लोग रोटी खाते हैं ना, वो भी दाल रोटी। वो ये क्लब है, क्लब की ये कॉन्सेप्ट नहीं अली, क्लब का ये कॉन्सेप्ट है कि अब आए, आपकी फैमिली आए, पता लगे कि आप किसी क्लब के कैफेटेरिया में, हमारे दौर में होता था कि यार प्रेस क्लब से खाना खाना है, कोई खाना खिला दे। ये है कॉन्सेप्ट प्रेस क्लब का। तो मैं समझता हूँ कि हमें चैलेंजेस बड़े हैं, 2 साल बाद आ रहे हैं। क्लब को पहले तो क्लब बनाना है, काम फैमिली। जी, गुफ्तगू सुनी अरशद अंसारी की। उन्होंने कहा कि वोट दें, और सबसे पहले उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि जी मैं मेंबर्स की, जो नॉन मेंबर्स हैं, जो साफ़ी हैं, जिनका अरसे दराज से मेंबरशिप पे पाबंदी लगी है, वो भी हम खोलेंगे और साफ़ियों की खिदमत करेंगे, और फ़ेज़ 2 को बहाल किया जाएगा साफ़ियों के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जर्नलिस्ट पैनल को वोट दें। DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की नाकिस पॉलिसियां शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। रिकॉर्ड शिफ्टिंग की नाकामी खुलकर सामने आ गई। शहरियों की अरबों रुपए की फाइलें रद्दी में तब्दील हो गई हैं। मंसूबा इल्तिवा का शिकार होने से वन विंडो की कारकर्दगी भी मुतासिर होने लगी। मुतादिद फाइलों पर एतराज़ात से साइलिन LTA दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। अपडेट करते चले आपको, DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की नाकिस पॉलिसियां शहरियों के लिए वबाल जान बन गई हैं। रिकॉर्ड शिफ्टिंग की नाकामी खुलकर सामने आ गई है। शहरियों को अरबों रुपए की फाइलें रद्दी में तब्दील कर दी गई हैं। मनसूबा इल्तवा का शिकार होने से वन विंडो की कारकर्दगी पर भी मुतासर असरात हुए हैं। मुतादिद फाइलों पर एतराज़ात से साइलिन LTA दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की नाकिस पॉलिसियां शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। रिकॉर्ड शिफ्टिंग की नाकामी खुलकर सामने आ गई। शहरियों की अरबों रुपए की फाइलें रद्दी में तब्दील हो गई। मंसूबा इल्तिवा का शिकार होने से वन विंडो की कारकर्दगी भी मुतासिर होने लगी। मुतादिद फाइलों पर एतराज़ात से साइलिन LTA दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। अपडेट करते चले आपको, DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की नाकिस पॉलिसियां शहरियों के लिए वबाल जान बन गई हैं। रिकॉर्ड शिफ्टिंग की नाकामी खुलकर सामने आ गई। शहरियों की
अरबों रुपए की फाइलें रद्दी में तब्दील हो चुकी हैं। मनसूबा अल्तवा का शिकार होने से वन विंडो की कारकर्दगी पर भी मुतासर असरात पड़े हैं। मुतादिद फाइलों पर एतराज़ात से साइलिन LDA दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की नाकिस पॉलिसियां शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। रिकॉर्ड शिफ्टिंग की नाकामी खुलकर सामने आ गई। शहरियों की अरबों रुपए की फाइलें रद्दी में तब्दील हो गई। मनसूबा अल्तवा का इसी पर मजीद अपडेट्स लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराइन से। जी शहबाज, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस वाक़े से मुतालिक? आज बिल्कुल हसनैन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी स्पीड जिनको कहा जाता है, अवाम दोस्त मसूदे और दिन रात की मेहनत से जहां अवाम खुश और मुतमईन नजर आते हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की नाकस पॉलिसियां शहरियों के लिए वबाले जान बनी नजर आने लगी। जोहर टाउन रिकॉर्ड शिफ्टिंग का मामला हो या कोई भी LDA के इंतजामी मामला, तो इन सब में DG LDA की नाअहली नाकामी खुलकर सामने आने लगी है। नाकाम पॉलिसियों में जोहर टाउन रिकॉर्ड शिफ्टिंग सरे फहरिस्त है, जहां शहरियों की अरबों रुपए की फाइलें रद्दी का मंजर पेश करने लगी हैं। मनसूबा अल्तवा का शिकार होने से वन विंडो की कारकर्दगी भी मुतासर होने लगी। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा के मुतादिद मंसूबे इसी तरह अवाम दुश्मन और नाकाम साबित होने लगे। रिकॉर्ड शिफ्टिंग का मंसूबा भी LDA की इंतजामिया के गले पड़ता दिखाई दे रहा है। जराये के मुताबिक DG LDA मोहम्मद अली रंधावा इस इकदाम से साइलिन LDA दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, और साइलिन को अपनी दाद रसी के लिए इन्हीं लोगों के पास जाना पड़ता है जो कि करप्शन और बद इखलाकी के बेताज बादशाह हैं LDA में। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड शिफ्टिंग में ताखीर से शोबा टाउन प्लानिंग की कारकर्दगी हो या दूसरा कोई भी LDA के मामला रेवेन्यू जनरेट करने के, तो उसमें भी करोड़ों रुपए के जो चालान है वो भी जमा नहीं हो सके शिफ्टिंग की वजह से। LDA दफ्तर में जगह जगह जमीन पे पड़ी फाइलें मोहम्मद अली रंधावा जो DG LDA हैं बदतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। साइलिन का कहना है कि रिकॉर्ड शिफ्टिंग के मंसूबे की नाकामी खुलकर सामने आ गई है, जिससे शहरी भी ख्वार हो रहे हैं, और महकमा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी इसके साथ साथ करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक अहम बात मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये जो फाइल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ना तो रद्दी है ना ही फालतू कागजात। ये MA जोहर टाउन की फाइल्स हैं, जहां जराये के मुताबिक एक कनाल कमर्शियल प्लाजा की मालियत तकरीबन 20 से 30 करोड़ रुपया है, जबकि ये रद्दी का मनाजिर पेश करती ये फाइलें अरबों मालियत की बनती हैं। मैं आपको ये भी यहाँ बताता चलूं कि जराये का कहना है कि रिकॉर्ड शिफ्टिंग के लिए डायरेक्टर IT ने कुछ दिनों का टाइम लिया था तमाम जोहर टाउन के रिकॉर्ड को शिफ्ट करने के लिए, मगर महीनों गुजरने के बाद भी जराये ये कहते हैं कि 22,000 तकरीबन जो फाइल्स हैं उसमें से 200 फाइल को सिर्फ शिफ्ट किया गया है, और उनमें 200 में से तकरीबन 150 फाइल पर इतराज लगा दिए गए हैं। और इसके साथ अफसरान का कई अफसरान से जो हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि रिकॉर्ड शिफ्टिंग फार्मूला बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है, अवाम को तंग करके इसको खत्म करना चाहते हैं। DG LDA की अदम दिलचस्पी और अदम दस्तयाबी की वजह से पूरा LDA चंद जूनियर अफसरान ने यरगमाल बनाया हुआ है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता नजर आ रहा है। और हाउसिंग 7 और अकाउंट्स में हजारों की तादाद में जो दरखास्तें हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं, जिसका कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला भी नहीं। आपको मालूम होगा कि हमने पहले भी बताया था कि वजीर आला पंजाब ने कहा था कि कोई NOC और नक्शा जारी करने में ज्यादा टाइम डिले ना किया जाए, मगर लगता है ऐसे कि DG LDA के इसका उल्टा समझे और तमाम के तमाम काम फिल वक्त IT और DG LDA की मरहूम मिन्नत बंद पड़े नजर आते हैं। और काफी सारे जो साइलिन है, वन विंडो अगर देखा जाए, हाउसिंग 7 जो जोहर टाउन का हाउसिंग है उसको देखा जाए तो सब के काम वहां पर बंद नजर आते हैं, और साइलिन जो है वो जलीलो ख्वार होते वहां पे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की नाकिस पॉलिसियां शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं। रिकॉर्ड शिफ्टिंग की नाकामी खुलकर सामने आ गई है। शहरियों की अरबों रुपए की फाइलें रद्दी में तब्दील हो गई हैं, जो आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अराइन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको हम तरीन खबर से आगाह करें कि बलाच बलोच समेत ज़बरदस्ती लापता अफराद के नाम पर सियासत और महरंग बलोच के मुसल्लह गुंडों की हकीकत आश्कार हो गई है। मौला बख्श बलाच बलोच के नाम पर जारी बलोच मार्च की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता आया होने लगी है। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों समेत सियासी शरपसंद अनासिर बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान दिन ब दिन बेहतरी की जानिब गामज़न है। मईशत बेहतर हो रही है, सफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं और जल्द पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का इन्नेकाद भी होने जा रहा है। लिहाजा इलाकाई, लसानी और कौमी परस्त जमातों के पास अफरा तफरी फैलाने का कोई मखसूस एजेंडा नहीं बचा, तो ऐसे में दहशत गर्द और बलोच अलहदगी पसंद तरीकों को सुबायत का रंग देकर नया ड्रामा रचाया जा रहा है। मुसद्दका मालूमात के मुताबिक बलाच बलोच दहशत गर्द तंजीम BLA का मखबर था, जो मुख्तलिफ केसेस और इल्जामात की बदाश में CTD की हिरासत में था। चूंकि बलाच मखबर के तौर पर काम करता रहा और उसके पास दहशत गर्दों के ठिकानों समेत छुपाए गए असलहा और बारूद की मालूमात आती रही। बलाच बलोच के फराहम करदा मालूमात के मुताबिक जब BLA की जानिब से जखीरा किए गए असलहा की बरामदगी की गई, उसके अलावा जानिब कार्रवाई में BLA के दहशत गर्दों ने हमले के दौरान 6 मजदूर हलाक कर दिए थे, जिनमें बलाच बलोच भी मारा गया था। हस्बे ममूल खसियानी बिली खंबा नोचे के मुस्तक दुश्मन मुल्क फंडेड याफ्ता बलोच तरीकों ने BLA के एमा पर वावेला शुरू कर दिया था। कौमियत परस्त जमातों ने दुश्मन मुल्क की चाबी दिए जाने पर बलोच मार्च का आगाज किया था। बलोच मार्च की नाकामी पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। मार्च का आगाज बलोचिस्तान से किया गया था, लेकिन मुहिब वतन बलोच अवाम ने कोयटा समेत सूबा भर में इन ड्रामाबाजों को मुस्तरद किया था। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तहकीकार एजाज अहमद डोगर साहब। इनकी जानिब बढ़ेगी और इनसे पूछेंगे कि सर, ये जो खबर इस टाइम पर मंजर आम पर आ चुकी है कि बलाच बलोच समेत ज़बरदस्ती लापता अफराद के नाम पर सियासत और महरंग बलोच के मुसल्लह गुंडों की हकीकत आश्कार हो गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो खुश आइंद बात यह है कि हमारे बलोच भाई मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं। देखिए, जो गुज़िश्ता रोज सरफराज बंगल जई BNA, जिन्होंने बलोच नेशनल लिबरेशन, जिन्होंने क्या किया है कि कौमी धारे में शामिल हो गए। उन्होंने अपने हथियार जो है वो फेंक दिए। उन्होंने कहा, सामने वाज़ेह किया कि हमें गैर मुल्की जो पाकिस्तान को अंदर इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी और अफरा तफरी देखना चाहती हैं, उनके हम फंडेड थे। हम जो है, हमें समझ आ गई कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान ही हमारी असल हकीकत है, तो हमने वो तमाम जो है उनका साथ छोड़ के कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। ये एक खुशाइंद बात है। अब दूसरी तरफ मैं बात करूं, ये हालिया जो ये बलोच, अब बलोच तो हमारे भाई हैं, ये गुंडा मसल्ला जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें वो बलाच बलोच जो एक मुखबर था, मौला बख्श उर्फ बलाच बलोच, जो एक दहशतगर्द तंजीम BLA, उसका एक मुखबर भी था और उसके लिए काम भी कर रहा था। उसके वो ऊपर एक गायब होने के ऊपर एक जाली किस्म का ये जनाब एक धरना, जाली किस्म का एक मार्च जो है उसका वजूद में आया। बेसिकली ये महरंग बलोच जो है, इसने हुंडे पार रखे हैं, दहशतगर्द जो है पार रखे हैं। अब ये गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहा है, उन कुफ्तों के हाथ में है जो पाकिस्तान के मुखालिफ कुफ्ते हैं, और कुछ सियासी ऐसे पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जो जाती मफादात के लिए इन दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के जितने भी हमारे लॉ एनफोर्सेस की एजेंसियां हैं, पाक फौज और पाकिस्तान के अंदर आपकी एजेंसी जो है, मेन एजेंसी जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है, जिनको मुस्बत तरीके से काम कर रही है, नेगेटिव नहीं मुस्बत पॉजिटिव काम कर रही है, जो जिसका काम ही अमन कायम करना है, वो सोए हुए नहीं है। उन्होंने इनका असल चेहरा जो है ये अवाम के सामने लेके आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन और ये नंगे होते जा रहे हैं कि इनके पीछे मफादात क्या है। क्योंकि मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन के लिए ये बात कहता चलूं और अपने बलोच भाइयों के लिए ये चीज वाज़िया अयां करना चाहता हूं कि ये महराज जो आपका है बलाच बलोच जो है, इसको इस्तेमाल करने के लिए ये जो दहशतगर्द एक तंजीम BLA जो है, ये जो काम कर रही है और जो महरंग बलोच जो इसमें किरदार अदा कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहा है, जिसके पास अब कुछ मंजर नहीं रहा था बेचने के लिए, तो उन्होंने एक बलाच बलोच का एक इशू उठाया, एक जाली इशू, जो कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये चीज भी बताना चाहूंगा अपने नाज़रीन के लिए
कि ये BLA का चूंकि मुखबर था और इसके पास ये भी इतलात थी कि इनके खुफिया ठिकाने कहाँ पे हैं BLA के, और इसके पास ये भी थी कि BLA के अलावा बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्होंने असला भी कहाँ पे, पहाड़ों में किस जगह पे, कहाँ पे गारे हैं, जहाँ पे खंदक, इन्होंने कहाँ पे असला छुपाया हुआ है। तो जब ये आपकी CTD ने इसको गिरफ्तार किया हुआ था, उसने हिरासत में लिया कि हमें वहां तक पहुंचाएं। जब उन्होंने वहां पे लेके गया, असला पकड़वा दिया दहशतगर्द तंजीमों का, तो उनको इस चीज का गुस्सा था। उन्होंने इस बलाच बलोच जो मुखबर था, जो दहशतगर्दों का एक फ्रंटमैन था, जब उसको इन्होंने देखा कि इसने हमें बताया, तो उन्होंने 6 मजदूर भी हलाक कर दिए, जिसके अंदर एक बलाच बलोच भी था। इसको इन्होंने दहशतगर्द तंजीम ने मारा है, CTD की हिरासत से इन्होंने छुड़वा के इसको मारा है। तो जब ये सारी चीजें सामने हुई कि ये भी मंजर नहीं बिचने वाला, ये भी दुनिया के सामने आ गया, तो अब वो मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने बना के, चूंकि वो फंडेड तंजीमें हैं, ये बलोच जो है वो फंडेड तंजीमें बलूचिस्तान के अंदर जो है वो बलूचिस्तान का अमन जो है वो खराब करना चाहते हैं, पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आए, क्योंकि उनसे हजम नहीं हो रहा कि आम इंतखाबात भी होने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मुआशी इस्तेहकाम भी आ चुका है, जो पाकिस्तान को वो तौबा नौज़बिल्ला अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि वो पाकिस्तान को सोच रहे थे कि हम शायद तकसीम कर देंगे, इसके टुकड़े कर देंगे, वो हर मुहाज पे वो नाकाम हुए। आपके इदारों ने नाकाम बनाया, आपकी एजेंसियों ने नाकाम बनाया। तो अब बलाच बलोच को इस्तेमाल करते हुए वो सामने आ गए, वो भी नहीं चला, वो भी दुनिया के सामने आ गया। तो अब वो मुख्तलिफ महरंग बलोच अपनी बाजी जो है ये यूट्यूबरों को सामने ला के वो आओ बका जाली किस्म की और ड्रामेबाजी वो करवा रहे हैं, और ये भी टोटली जो है पाकिस्तान के अंदर रद्द हो चुके हैं। इनका असल चेहरा सामने आ चुका है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये वो उन बैरूनी हाथों में काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, और पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामला खराब करना चाहते हैं, वो सियासी तंजीमें जो अपनी जात के लिए काम करना चाहती हैं, जो जाती मफादात के लिए पाकिस्तान के मुखालिफ काम कर रही हैं, उनके हाथों में फंडेड तंजीमें काम कर रही थी। अब इसकी अच्छी बात यह है, एक तो कल सरफराज बंगल जई वाला वाकया आया कि उन्होंने कौमी धारे में शामिल हो गए। दूसरी तरफ मैं आपको बात बताऊं तो इनको जब इन्होंने बलूचिस्तान से इस मार्च का, बलोच मार्च का आगाज किया, तो टोटली हमारे बलोच मुहिब्बे वतन गैरतमंद भाइयों ने इन सबूत दिया कि वो गैरतमंद कौम है बलोच, और उन्होंने सबूत दिया कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली कौम है। उन्होंने टोटली इनको रद्द कर दिया। कोयटा के अंदर इनको जूते पड़े, बलूचिस्तान के अंदर टोटल इनकी वो फ्लॉप शो हुआ, और इनका एक ड्रामेबाज के अलावा किसी ने, वो सब ने कहा बलोचियों ने कि ये एक ड्रामेबाज तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, हम इनके साथ नहीं है। जब वहां से इनको जूते पड़े तो इन्होंने दूसरे सूबों का रुख किया कि हम दूसरे सूबों में जाते हैं, पंजाब, सिंध, KPK में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वहां पे भी इनका ये मकरू चेहरा जो है वो अय्या हो गया कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, ये बैरूनी हाथों में काम कर रहे हैं, ये किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं, कुछ सियासी दहशतगर्द, मैं उनको सियासत तो नहीं कह सकता, वो सियासी मफादात के लिए जो पाकिस्तान का नुकसान चाहते हैं वो भी दहशतगर्दी है, वो जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके हाथों में ये काम कर रहे हैं। अब ये अब ड्रामा चलने वाला नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। अब तमाम नाकामियों के बाद जब उनको पता चला, महरंग बलोच और उसके मुसल्ला दहशतगर्द लौंडो, उन गुंडों को जब ये पता चला कि हम हर मुहाज पे नाकाम हो गए हैं, तो वो इंतकाम के आप से इंतकामी कार्रवाई करते हुए उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, पुलिस के ऊपर डंडे चलाए। तो इंतकामन फिर मुझे बताया जाए कि उसको मुंतशिर करने के लिए उस हजूम को जो पथराव कर रहा हो, जो जिनके पास मुसल्ला हो, जिनके पास असला हो, जो डंडे चला रहे हो, तो उनको मुंतशिर करने के लिए क्या फूलों के हार पुलिस डालती उनके गले में? डेफिनेटली यही था कि उनको मुंतशिर करने के लिए उनको कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना पड़ना था, लाठीचार्ज भी करना पड़ना था, शैलिंग भी करनी चाहिए। ये पहली दफा थोड़ा हुआ है, ये जब भी ऐसा मुंतशिर करने के लिए वो शैलिंग करते हैं। तो अब इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि ये पाकिस्तान तरक्की की तरफ क्यों जा रहा है, पाकिस्तान जो है ये मुस्तहकम क्यों हो रहा है, पाकिस्तान के पूरी दुनिया के अंदर जो ताल्लुकात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत होते जा रहे हैं। तो अब उनको वो हजम नहीं चीज हो रही, ना उन तंजीमों को, दहशतगर्द को हो रही है, और ना वो बैरूनी कुव्वतें जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती थी उनको हजम हो रही है। इसके अब ये यहाँ हो चुका है। मैं ये आपको बता दूं, ये अपने नाजरीन को बता दूं कि अब ये ड्रामा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं चलने वाला, और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान इन दहशतगर्द तंजीमों से बिल्कुल पाक होगा, और पूरी दुनिया के अंदर सामने सुरखरू होगा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, और इस मुल्क के अंदर जितने भी ये बैरूनी कुव्वतों पे दहशतगर्द तंजीमें अंदरूनी काम कर रही हैं उनको भी नाकाम किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देख ले कलभूषण का हाल, कि कलभूषण ने, आप बलूचिस्तान के अंदर तो कलभूषण वाज़ेह होगा ना कि किस तरीके से उसने फंडेड नेटवर्क फैलाया हुआ था, रा ने किस तरीके से फंडेड नेटवर्क फैलाया हुआ था। मैं सिर्फ रा का नाम ले रहा हूँ, बाकी मैं
بہت ساری میری ٹپس بھی ہیں میرے ذرائع کے مطابق، میری اطلاعات کے مطابق کہ کون کون سی تنظیمیں جو ہے پاکستان کے امن کو سبوتاز کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر امن خراب کرنے کے لیے بلوچستان کے اندر کون کون سی متحرک تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے مہربانی سے آپ کے اداروں نے، آپ کی ایجنسیوں نے ان سب کو ناکام کیا، اور پاکستان الحمدللہ آج مستحکم بھی ہو رہا ہے، معاشی استحکام بھی آ رہا ہے، سیاسی استحکام بھی آ رہا ہے، عام انتخابات بھی فروری میں ہونے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر پاکستان کے روابط بھی مضبوط ہو رہے ہیں، تعلقات بھی مضبوط ہو رہے ہیں، یہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہو رہی، اور انشاءاللہ تعالی یہ ناکام ہی لوٹیں گے، اور سوائے ان کی ناکامی کے اور کوئی ان کا راستہ نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ پاکستانی عوام اور ہمارے غیرت مند اور محب وطن جو پاکستانی بلوچ بھائی ہیں وہ ان کو جوتے مار کے نکالیں گے وہاں سے۔ بالکل ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سینئر تجزیہ کار اعجاز احمد ڈوگر صاحب موجود تھے، وہ تفصیلات سے اپڈیٹ ہمیں کر رہے تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلاچ بلوچ سمیت زبردستی لاپتہ افراد کے نام پر سیاست اور مہرنگ بلوچ کے مسلح غنڈوں کی حقیقت آشکار ہو چکی ہے۔ مولا بخش عرف بلاچ بلوچ کے نام پر جاری بلوچ مارچ کی حقیقت آہستہ آہستہ عیاں ہونے لگی ہے۔ 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد لاہور میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار اور ایس پی کینٹ دھرمپورہ میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے رپورٹر ملک ایان آپریشن پر ہی موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے لیں گے۔ جی ایان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد دیگر ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد لاہور میں تجاوزات مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر MCL رافیہ حیدر نے خصوصی ٹاسک دیے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کو، جو کہ اپنی نگرانی میں تجاوزات کے خلاف جو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھاری مشینری کے ابھی ہمراہ ہے اسسٹنٹ کمشنرز کے، اور پولیس کی بھاری نفری بھی جو ہے آپریشن میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ موجود ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم آپریشن کر رہی ہیں، کتنے ٹرک سامان ضبط کر لیا گیا اور پولیس بھی آج ہمراہ ہے، تو کتنی گرفتاریاں عمل میں ہیں؟ بالکل ایس پی صاحب میرے ساتھ ہیں اس وقت۔ یہ ایک ایڈمنسٹریشن اور پولیس اور MCL کی ہم سب کی جوائنٹ ایفرٹ ہے۔ اس وقت تک 80 کے قریب اریسٹ ہو چکے ہیں، 35 کے قریب پرماننٹ اسٹرکچرز ڈیمولشڈ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام ہیبیچول انکروچرز جو دکانیں بند کر کے بھاگ گئے ہیں، ان کی دکانوں کو ہم سیل بھی کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل، دکانوں کو سیل بھی کیا جا رہا ہے۔ اویس شفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جیسا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پولیس بھی ہمراہ ہے اس دفعہ آپریشن میں، تو پولیس کیا کردار ادا کر رہی ہے اس میں؟ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک انیشیٹو تھا۔ پہلے روٹین میں بھی آپ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایک ہمیشہ کنٹینیوس رہنے والا ایک آپریشن ہے، اور یہ آپ کے میڈیا کے توسط سے میرا لوگوں کو بھی ایک میسیج ہے کہ ہم یہ چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ مطلب ریپیٹیڈلی کرتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ آج آپریشن ہوا تو کل ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ابھی جیسے میڈم نے کہا 80 کے قریب لوگ ہم نے اریسٹ کیے ہیں، اور پہلے یہاں پر فائن زیادہ ہوتے ہیں اینٹی انکروچمنٹ پہ، لیکن اس بار یہ نئی پالیسی آئی ہے کہ ہم ان پہ کرمنل پروسیڈنگز بھی انیشیٹ کریں گے، اور کل ہم کورٹ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ میکسیمم لوگوں کے ہم کو ریمانڈ دیں اور ان کو سزائیں سنائیں، صرف فائن نہ دیں۔ تو یہ ایک مستقل رہنے والا آپریشن ہے، اور یہ کنٹینیو بھی رہے گا تاکہ پبلک جو ان پاتھ ویز پہ ٹریول کرتی ہے یا جو فٹ ویز ہیں جن پہ پیدل چلتے ہیں ان کو تنگی نہ آئے۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ ایس پی کینٹ اویس شفیق بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مستقل خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور۔